Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So now here today we are going to start your class 6 science chapter 2 components of food. In this chapter we'll learn about components of food. So now here explanation part 2 we are going to start. In part 1 we have learned about lots of things, carbohydrates, food, okay, and fats, protein and all. Okay, so now here in this chapter we'll do some activities. Okay, so please concentrately look at here. In chapter 2 activities also are important. So explanation part 2 activities are there. So concentrately look at this video because activity we have to do, and in Zoom lecture I will show you the activities. Okay, so please concentrately look at here. So let's start your chapter 2 explanation part 2. Here students, see the second part of this chapter we are going to start. We have finished okay, first part. It's all about carbohydrates, fats, minerals, vitamins and all. Now here second part, start from here, this paragraph. First of all we'll read this paragraph. What carrying out these tests you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. Okay, here these are the things that will do this activity. So you will also need a few test tubes and droppers. Okay, आपको थोड़ी droppers and test tube की ज़रूरत पड़ेगी ये activity करने के लिए. An activity I'll show you also in Zoom lecture how to do this activity. So first of all you need some test tubes and droppers. Okay, now try this test on cooked food. You can try these tests on cooked food items as well as raw materials, right? You a way to record the observations from these tests. Okay, and some food items are given in these table. Okay, so that's why you can take some food items and you have to observe. Okay, this activity you have to do. First of all you can conduct the test. Okay, कब कर सकते हो? Either with these or any other available food items. Okay, if you are having these all the items of food, then you can test. Okay, otherwise any other available food items, okay, is there in your home. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. You know it's a very harmful for us, it is very dangerous for us, so that's why we have to take care of it. And now test carefully, but do not try to eat and taste any chemicals. Understood? So if the required solution are not available in रेडीमेड फॉर्म, अगर आपको रेडीमेड फॉर्म में ये सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं देन यू कैन आस्क योर टीचर टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन. बट नाउ दिस टाइम टीचर्स आर नॉट देयर. ओके, टीचर्स नॉट विद यू, तो दैट्स व्हाई you have to purchase these chemicals. Otherwise if you require the solution are not available in ready-made form, then you can do this test by your food items. Okay, so but let's do this activity. Now this time activity I'll show you properly, but whenever you will come in school, okay, then you will do this activity surely. Okay students, so next see, first of all let's begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. Okay, suppose कि if they contain, okay, वो क्या contain करता है? Carbohydrates. So there are many types of carbohydrates as you do. Okay, now the main carbohydrates found in our food are the form of, you can see, the form of starch and sugars. We can easily test if a food items contain starch. Okay, in the form of starch and sugars you can test this activity. We can easily test. Okay, and if a food item contains starch, अगर food item starch contain करती है, then we can do easily, okay, test of this activity. Okay, so first of all he'll do here some things are given. See, in yellow column is what given? Dilute solution of iodine. Dilute मतलब बहुत पतला, बहुत light solution जो होता है iodine का, can be prepared by adding few drops of, okay, tincture iodine to a test tube half filled with water. Tincture it means what? कि दिस इज़ अ लाइक कलर होता है. ओके, इट मीन्स सबका मिक्सचर होता है. सो दिस इज कॉल्ड टिंक्चर. ओके, अंडरस्टूड? तो सब इसे क्या कहते हैं? टिंक्चर. फाइन. तो टिंक्चर जो है आयोडीन का वो आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसको हाफ फिल कर देंगे. ठीक है,
हाफ फिल करने के बाद नाउ सी सेकेंड कॉलम में क्या दिया हुआ है, नाउ सी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 grams of copper sulfate in 100 milliliter of water. 100 milliliter of water we have to take first of all. copper sulfate solution can prepared कैसे बनाया जा सकता है, 2 gram dissolving of copper sulfate. 2 gram dissolving copper sulfate we have to take first of all, and now here 100 millimeter of water we have to take. Now this time you activity you can't do, I know that you are in home, so but I'll show you how to do, okay, how to do this activity. 10 gram of caustic soda dissolved in 100 milliliter of water makes the required solution of caustic soda. ओके, सो कास्टिक सोडा का जो अब हम लोग बनाएंगे तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे, ओके, दैट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर वाटर. वाटर भी हम लोग कितना लेंगे, 100 मिलीलीटर. नाउ मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन टू ऑफ कास्टिक सोडा का हम लोग क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे कास्टिक सोडा का. अंडरस्टूड? ओके, मैं इस कुछ एक्टिविटीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एक्टिविटी 2. हियर one boy and girl, what they doing that test for starch. वो स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. स्टार्च को किस तरह से टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या लिया है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स. वी ओके, सपोज यू आर टेकिंग रॉ इंग्रेडिएंट्स, जो कच्चे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लिए हैं. पुट 2 and 3 drops of dilute iodine solution, okay, which shown in figure 2.1. it means you can see that they have taken सम फूड आइटम्स, ओके, एंड फूड आइटम्स में उन्होंने लिया है लाइक हियर के सम रॉ इंग्रेडिएंट्स, और उसमें क्या पुट किया, 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन. इट मीन्स डायल्यूट बहुत लाइट, ओके, होता है आयोडीन सॉल्यूशन. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न इनटू ब्लू ब्लैक. हमें देखना है कि क्या वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है आयोडीन सॉल्यूशन पुट करने के बाद. 2 या 3 ड्रॉप्स ही आयोडीन पुट करना है. ओके, सम फूड आइटम्स दे हैव टेकन. इट मीन्स जैसे यहाँ पे कच्चे आलू ले लिए हैं, ठीक है, जो पोटैटो होता है ना, रॉ पोटैटोज़, तो दे हैव टेकन रॉ पोटैटोज़. यू कैन टेक एनी वेजिटेबल, यू कैन टेक एनी फूड आइटम्स, ओके, फॉर टू डू टेस्ट ऑफ स्टार्च. See, a blue black color indicates that it contains starch. Okay, it means what, in our food starch is there. Okay, whatever we are eating that, so our food having starch is very very important for us, as you know very well. So starch को हम लोग टेस्ट करने के लिए कि इस फूड में स्टार्च है या नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 2 या 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के पुट करेंगे, एंड विल ऑब्जर्व दैट कि ब्लू ब्लैक कलर में इंडिकेट हुआ या नहीं. नाउ रिपीट दिस टेस्ट फॉर other food items to find out which these contain starch. Enter all the observation in 2.2 table. Okay, first of all 2.1 table, I told you that 2.1 table is also there. Here I'll show you 2.1 table what is given. See, here we have done 2.1 table, some common meals of different regions and state. I hope you have done with the pencil. Here 1 or 2 names of state you have to write. Item of grains you have to write. Item of dal and meat you have to write here. Vegetables, okay, which vegetables are famous in them other state. Other, it means whatever they are adding with the food. Suppose in Punjab they are adding curd and ghee. Here Andhra Pradesh they are adding buttermilk, ghee, pickle and all. And in Gujarat suppose we are taking sweet, okay, and chas and all. So that's why we can add others also. Next, test for protein. Okay, test for protein. This is all the observation you have to write in this table. Okay, nutrients present in some food items. Okay, take a small quantity of food items for testing. If the food you want to test in a solid, you first need to make a paste of it and power it. Okay, first of all take some small quantity of food items. Okay, आपको थोड़ा सा food items लेना है. Then what you have to do? If the food you want to test in a solid, okay, अगर आप किस में टेस्ट करना चाहते हो, सॉलिड फॉर्म में, तो फर्स्ट यू नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर. आप उसको पाउडर फॉर्म में कर सकते हो या उसको पेस्ट बना सकते हो. ग्राइंड और मैश और ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैट फूड आइटम, उसको ग्राइंडिंग कर सकते हो, ग्राइंडिंग मशीन होती है ना, उसमें कर सकते हो. पुट सम ऑफ दीज इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब. अब उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखना है. एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. ओके, अब क्या करना है,
10 ड्रॉप्स ऑफ किसके डालने हैं, वाटर के। ठीक है, कोई भी फूड आइटम आप ले रहे हो, सपोज वो सॉलिड है तो उसको मैश कर लो या पाउडर बना लो। ओके, अब आपको क्या करना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर यू हैव टू पुट इन दैट टेस्ट ट्यूब and now shake it the test tube. Okay, so what will happen, see now using a dropper से आपको ये एक्टिविटी करनी है। see some boy, okay, one boy is given, he has taken some solutions and all, is putting drops of caustic soda in solution. So now here using the drops, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of sulfate solution of caustic soda. okay, हमने 2 सॉल्यूशन मिलाए हैं इसमें। ठीक है, तो कास्टिक सोडा एंड कास्टिक सोडा हमारे घर में अवेलेबल होता है। ओके, एंड कॉपर सल्फेट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट इन केमिकल शॉप एंड ऑल। सो हियर दिस एक्टिविटी वी आर डूइंग, तो वी हैव टू पुट ओनली 1 or 2 drops of okay water and 10 drops of water and here some drops of iodine solution, copper solution and caustic soda. Okay, so will you do this activity? I'll show you this activity, don't worry. So caustic soda, see caustic soda to the test tube in figure 2.2 and shake well and let the test tube stand for a few minutes. अब उसको थोड़े टाइम के लिए आप उसको टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रख दो। फाइन, सो क्या देखने को मिलेगा, क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? A violet color indicates present in the protein in the food item. अब देखो blue black color is contained if you having any food, so that it means what, starch is present. But here protein is present, it means what, color had to change in the violet color. So violet color indicates presence of proteins in the food item. Now you can observe this table. First of all, this table you have to do in your textbook. Okay, so will you do this in textbook? Food item, first of all the food items are given. Please look at this table properly. This table is very nicely is given in your textbook. Food items are given. Starch present, तो raw potato में starch present होता है, milk में starch present होता है। milk में एक्टिविटी करनी है आपको, groundnut के साथ एक्टिविटी करनी है, uncooked ओके पाउडर्ड राइस, और प्रोटीन किस में प्रेजेंट है, फैट किस में प्रेजेंट है, तो ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू। ठीक है, अंडरस्टूड, ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू कि किस किस चीज़ में, इट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ, इट मीन क्या क्या प्रेजेंट है। अंडरस्टूड स्टूडेंट दिस वन? ओके, नेक्स्ट है, मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगी कि फैट किस में प्रेजेंट है। एक्टिविटी आई विल शो यू, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट दिस वीडियो। ओके, ऑल द थिंग्स आर गिवन, अंडरस्टूड। नाउ टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स का टेस्ट करने के लिए हम क्या लेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम यू विल टेक, रैप इन अ पीस, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर में रखो एंड क्रश इट, उसको क्रश कर लो। ओके, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, याद रखना कि वो पेपर जो है वो फट ना जाए। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर, अब उसको पेपर को देखो एंड ऑब्जर्व करो ध्यान से कि डज इट हैव एनी ऑयली पैच। ठीक है, आप कोई भी पेपर लो और उस पर कुछ सीड्स या कुछ ऐसे रॉ मटेरियल, या फिर आप ये भी रख सकते हो लाइक कहते हैं ना राइस, बाजरा, वीट, एवरीथिंग यू कैन पुट। सो प्लीज़ ऑब्जर्व कि आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू द दिस पैचेस, मतलब ऑयली स्पॉट्स उसमें पेपर पर रह जाते हैं। जैसे आप किसी पेपर पर कुछ खाने की चीज़ रखते हो तो उस पर ऑयली स्पॉट्स रह जाते हैं या नहीं रहते हैं, तो यू हैव टू सी दैट। ओके, any oily patches on paper shows that the food item contains fat। जो ऑयली स्पॉट, ये बहुत इजी एक्टिविटी है। ओके, फैट्स की, फैट्स में सिर्फ आपको पेपर लेना है, फूड आइटम्स लेना है। अंडरस्टूड, पेपर लेना है और क्या लेना है, फूड आइटम्स लेने हैं। नाउ ऑयली पैचेस ऑन पेपर शोज द फूड आइटम्स कंटेन फैट। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। ओके, आफ्टर यू हैव रब्ड, आप उसको रब्ड करोगे, अपने हाथों से घिसोगे, देन व्हाट विल हैपन, एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, थोड़ी देर सूखने दो। ठीक है, इफ़ देयर वेर एनी वाटर एंड मे कम फ्रॉम फूड, तो इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इट मीन्स जब आप उसका टेस्ट करोगे तो कुछ चीज़ें उसके बाद थोड़ा रब्ड करोगे। ओके, जो भी पेपर पर रखा है, एंड लेट द पेपर ड्राई, अब उस पर पेपर को सूखने दो। ओके, ड्राई होने दो। इफ़ देयर वेर एनी वाटर,
अगर इस पर पानी है तो मे हैव कम फ्रॉम फूड, कहाँ से आया होगा, फूड से आया होगा ना पानी, ऐसा तो नहीं डायरेक्टली पानी उस पर गिर गया. इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम एंड इफ नो ऑयली पैचेस शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन एनी फैट. अगर उस पर ऑयली स्पॉट्स नहीं है, ओके, ऑयली स्पॉट्स नहीं है या ऑयली पैचेस नहीं है, देन यू कैन से दैट कि दैट food items did not contain what, fat, did not contain fat. Okay, it means here food items does not contain fat. ये एक्टिविटी आपको करनी है प्रॉपरली. ओके, नाउ अंडरस्टूड कि व्हाट डू दीज टेस्ट शोज, ये टेस्ट क्या शोज करते हैं स्टूडेंट, टेल मी. ओके, आर फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड. ओके, जो भी आपने टेस्ट किया है उसमें ये सब आइटम्स प्रेजेंट है या नहीं. डज द फूड आइटम्स कंटेन मोर देन न्यूट्रिएंट्स, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिशंस. अंडरस्टूड. सो व्हाट यू डू, क्या करोगे आप, पहले ये सारे टेस्ट करने पड़ेंगे. फाइन, सो विल डू दिस टेस्ट. ओके, नाउ we tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, protein and fats. There are also other nutrients like vitamins, minerals and that are present in food items. So why do we need all the nutritions, हमें क्यों ज़रूरत है nutritions की. So I'll show you, don't worry. Okay, but first of all you have to do this test first of all. Okay student, here we'll discuss about carbohydrates. First of all, these are the main source of energy in our body. As you know very well कि these are the main source of energy in our body. You can see in this picture, these are carbohydrates. Okay, so they are the most common component of our food. Few common sources of carbohydrates are potatoes, banana, mango, cereals such as wheat and rice. Okay, sugar and honey. Potatoes, bananas, mangoes, cereals. You can see in this picture, wheat, rice, sugar, honey. These are carbohydrates, common source of food. Okay, the presence of carbohydrates can be tested by the help of iodine solution. Okay, so जो presence होता है carbohydrates वो कैसे किया जा सकता है, उसके आयोडीन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम टेस्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू दिस एक्टिविटी. सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस जो है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग पहले एक एक्टिविटी लेंगे. टेक अ पीस ऑफ रॉ पोटैटो एंड ग्रैप. एक छोटा सा पीस लेंगे जिसमें ग्रैप और क्या होगा, पोटैटो. Then you will observe the appearance of blue-black color on the potato slice. Okay, in potato slice you will observe that blue-black color you can see after pouring the iodine drops. Okay, so this activity just for presence of carbohydrates we are testing. Okay, so this shows that carbohydrates are present in potato. Okay, this activity shows that carbohydrates are present, okay, in potato. See here protein. First of all, protein in your body कि they are complex body building compounds. Next one you will see कि they are required as constituents of cells and tissues. Okay, so our body required as a constituents of cells and tissues. हमारी body को cells and tissues की requirement है. Okay, because they are required for muscle contraction. Okay, so protein किस किस के लिए requirement है, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ठीक है, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज़ के लिए. प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड इम्यून पावर ऑफ आवर बॉडी. दिस टाइम एज यू नो वेरी वेल कि वी हैव टू मेंटेन आवर इम्यूनिटी सिस्टम. ओके, इम्यूनिटी पावर. सो कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर फिश, मीट, एग, मिल्क, पीस, बीज, सीरियल्स एक्सेट्रा. ओके, तो कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं, फिश है, मीट है, एग है, मिल्क है, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है. पीस, बीन्स, सीरियल्स एक्सेट्रा. अंडरस्टूड. सो कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन एज यू नो. ओके, हियर यू सी इन दिस पिक्चर कि प्रोटीन किस किस में प्रेजेंट होता है. सो फिश है, मीट है. ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. अब प्रोटीन किस में प्रेजेंट है, विल डू दिस एक्टिविटी एंड विल गेट टू नो कि हमें प्रोटीन किस चीज़ में प्रेजेंट होता है वो हमें पता चल जाएगा. ठीक है, सो एक्टिविटी टू द टेस्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. टेक सम
sprouts beans and grind them in pasty and mortar। देखो कुछ आपको क्या लेने हैं, स्प्रॉटेड बीन्स लेने हैं जो स्प्रॉटेड हुए ओके, देन उनको ग्राइंड करना है। कीप द ग्राइंडेड सीड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा ऑन दैम। कॉस्टिक सोडा आता है, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, आपके घर में प्रेजेंट होगा, आपको उसके तो कुछ ड्रॉप्स डालने हैं उसमें, ठीक है। जो ग्राइंडेड सीड्स थे उसको टेस्ट ट्यूब में डाला एंड उसमें क्या किया, कास्टिक सोडा के थोड़े ड्रॉप डाले। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू विट्रॉल ऑन इट, ओके। ब्लू विट्रॉल भी डाला है, ओके। विट्रॉल जो आपके प्रोटीन मतलब पहचानने के लिए होता है वो आपने ऐड किया। नाउ क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सीड्स चेंजेस टू पर्पल। चेंज हुआ ना, सीड्स का जो कलर था, ओके, जो आपने ग्राइंड करके डाला था उसका कलर चेंज हो गया। सो दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब है कि आपके सीड्स में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ओके, बिकॉज हमें टेस्ट करना था, दैट्स वाई वी डिड दिस एक्टिविटी। सो दे कंटेन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। फैट्स जो है, यहाँ पर हम फैट्स की बात कर रहे हैं कि दे कंटेन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो फैट्स जिस भी चीज़ में प्रेजेंट होता है हम लोग वो खाते हैं, ओके। चीज़ होती है उसमें फैट होता है। कॉमन सोर्स ऑफ फैट्स आर कुकिंग ऑयल्स, घी, बटर, मिल्क, चीज़, मटन, एग, यॉक एक्सेट्रा। सी कुकिंग ऑयल में बहुत सारा फैट होता है, घी में, बटर में, मिल्क में, ओके। एंड चीज़ जो आपका आई थिंक फेवरेट है, एंड हियर मटन, ओके, जिसे हम लोग मीट कहते हैं। एग यॉक, ओके, एग यॉक जो होता है, ओके, इसके इंटरनल पार्ट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। मिल्क, चीज़, बटर, एग्स आर मीट्स आर एनिमल फैट्स, while oil extracted from almonds, groundnuts, mustard, sunflowers etc. from vegetable fats। देखो animal fats are there and vegetable fats, two different fats are there, okay। milk, cheese, butter, eggs, meat, these are animal fats। vegetable fats you can see almond oil, groundnut oil, mustard oil, sunflower oil, these are vegetable fats, understood। so two types of fats are there, vegetable fats and which one, animal fats। here activity to the test of presence, again हम लोग एक्टिविटी करेंगे फैट प्रेजेंट किस में है। let us perform an activity for test the fat। take a few groundnut seeds and rub them on the paper, okay। you will observe oily stain on the paper, you will rub na, so you will see कि that oily spot is there, this confirms the presence of fats in the groundnut seeds, okay। this is confirmed कि the presence of groundnut in seeds क्या present है, fat। vitamin and minerals, now we'll talk about vitamins and minerals, okay। so they are organic compound needed by our body in small amount, okay। so here we'll see vitamin and minerals किस में होता है, okay। vitamins are vital for metabolic functions of life and healthy food। vitamin and minerals किस किस में होता है, fruits and vegetables are good source of vitamins, do you know। fruits and vegetables you have to eat more because in this material, okay, in this functions vitamins and minerals are present। source of vitamin A, sources of vitamin A means किस में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, fruits, eggs, fish, carrots। it is helpful to maintain healthy eyes and skin, do you know it is very very healthy, okay, and helpful to maintain our healthy eyes and skin। and deficiency disease, night blindness, ये सब की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ओके, आप ब्लाइंड हो सकते हो, ओके। सो आपको ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। नाउ सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी किस किस में प्रेजेंट होता है, मीट, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पी, पोटैटो, सीरियल्स, ग्रेन्स, टोमेटो। you have to eat all these things because you will get vitamin B from these sources, so that's why you have to eat। now it is essential for biochemical reactions, okay। ये किसके लिए ज़रूरी है, बायोकेमिकल रिएक्शन। डिफिशियंसी डिजीज़, बेरी बेरी, ओके, दिस इज़ डिफिशियंसी, इसकी कमी के कारण बेरी बेरी आपको लाइक डिजीज़ हो सकती है।
नाउ विटामिन सी, सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, ओके, गूसबेरी, लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना जिसमें काफ़ी रस होता है, ओके, सिट्रस फ्रूट्स वो खाने चाहिए। इट एसेंशियल फॉर इम्यूनिटी एंड इसके कारण आपको स्कर्वी का डिजीज़ हो सकती है, डिफिशियंसी डिजीज, स्कर्वी डिजीज़। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, मिल्क, फिश, सन रेज, ओके, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, डू यू नो, फ्रॉम सन रेज, मिल्क और फिश से भी मिलता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स, आपकी बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। डिफिशियंसी डिजीज, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स जो बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है ये बीमारी, और ऑस्टियोमलेशिया सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, बोन्स में सॉफ्टनिंग आ जाती है, ओके। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, सो दीज आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, green leafy vegetables, milk, butter, tomato, you have to eat tomato, you have to eat butter, okay, you have to drink milk, so जिसके कारण आपको विटामिन ई का जो है वो कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। विटामिन ई जो होता है वो हमें ये सब चीज़ों से मिलता है। एंड इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स, मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट करता है, ओके। सो दीज आर सोर्सेज जो हमें हमारे सेल्स को इंटीग्रिटी मतलब पूरा करने के काम आते हैं। डिफिशियंसी डिजीज़ है एनीमिया, ओके, एनीमिया डिजीज़ होती है जो इन सब चीज़ों की कमी की वजह से हमें हो जाती है, ओके। एंड नेक्स्ट हियर विटामिन के सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ओके, विटामिन के जो है वो किस में सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लोटिंग, हमारी जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसके लिए काम आता है विटामिन के, एंड दिस इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। एंड नाउ डिफिशियंसी डिजीज, हेमरेज, ओके, इट मीन्स हमारी जो नोज़ ब्लीडिंग होती है, ओके, वो होने लगती है ये सब चीज़ की कमी से, विटामिन के की कमी से। नाउ हियर सी, मिनरल्स आर न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन मिनट अमाउंट, ओके, मिनट अमाउंट्स में हमारी बॉडी को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है बाय द बॉडी, ओके। तो विटामिन एंड मिनरल्स आर सो मच इम्पोर्टेंट थिंग्स, ओके। विटामिन्स एंड मिनरल्स दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड गुड हेल्थ, ओके। नॉर्मल फंक्शनिंग और हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नीडेड है। नाउ हियर कैल्शियम किस किस में होता है स्टूडेंट, प्लीज़ लुक एट हियर प्रॉपरली एंड यू विल गेट टू नो। कैल्शियम होता है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, बटर मिल्क एंड कर्ड आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इट इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ ऑफ बोन्स। तो यू हैव टू ईट मोर green vegetables, you have to drink buttermilk, you have to eat curd, because these are good sources of calcium, okay, and this is good for health of bones, okay, good health of bones. Now iron किस किस में होता है, meat, dry fruits and green leafy vegetables are good sources of iron. It is essential for synthesis of हेमोग्लोबिन, ओके। मीट एंड ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे काजू बादाम होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ आयरन। किसके लिए ज़रूरी है, सिंथेसाइज ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में, ओके। सो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ आयरन। फॉस्फोरस, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फॉस्फोरस ऑल्सो इज देयर, सो दैट इज़ गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ये क्यों यूज़फुल है, तो लिसन, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, हमारी बोन्स का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है, फॉस्फोरस के कारण होता है। और फॉस्फोरस कैसे होगा हमारी बॉडी में, जब हम मिल्क पियेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, सो दैट्स वाई इट इज़ यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। सल्फर, नाउ सल्फर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अनियन आर गुड सोर्स ऑफ सल्फर। आप अनियन ज़्यादा से ज़्यादा खाओ या ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ओके, तो इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज़। हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं डेवलपमेंट जो करते हैं वो किसके काम आते हैं, ओके। सो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज़ ग्रीन वेजिटेबल्स और अनियन के कारण होता है। सो आयोडीन, ओके, आयोडीन में होता है सी फूड एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट आर गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ ग्रोथ। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये नेसेसरी है जो सी फूड होते हैं, इट मीन्स सॉल्ट है, ठीक है, तो वो हमारे लिए ग्रोथिंग के लिए नेसेसरी है।